In India, even those who don't have a product are accelerated for some reason, and those who have raised Series A sometimes are incubated. People love their idea, love their product, and love their thought process. So they're not ready कि कोई और उसकी बुराई कर दे. So the fear of somebody rejecting your line of thoughts is something with which people don't want to share their line of thoughts. Is it fear or it is ego? It is fear masked by ego. Okay. That is what I feel. Because everybody actually hates or fears failure. So I know कि your journey has been fabulous. बड़ी interesting journey रही है from Jaipur to Indore. But the people do not know about it. So I really want to understand कि क्या रहा जयपुर से इंदौर, क्या क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पे आया. So I'll go perhaps what happened in Jaipur और फिर मैं इंदौर पे आता हूँ. So after working for around 8-9 years मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए. And then an opportunity came sometime in 2018 December कि CIIE was doing something in Jaipur. So CIIE is the incubator of IIM Ahmedabad and obviously the biggest name for management institute in India. So I thought it's a good opportunity and it came my way and I sort of grabbed it with both hands. Luckily वो उन्होंने मुझे grab करा and I started my journey with them. So for a couple of initial months I did nothing. I just learned the formal way of how startups should be run. क्योंकि I had also started my journey just like everybody else कि गिरो और सीखो या कर करके सीखो, fail हो के सीखो. But then I got this thing and I started learning the formal way of how startups are built, how startups are to be supported, etc. etc. तो उस जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 साल होने के बाद में अगेन थोड़ा ऐसा लगा कि व्हाट नेक्स्ट, कुछ नया चैलेंज चाहिए था. एंड CI को at that point of time got an opportunity to start the Indore hub with Smart City Indore. And they were trying to find somebody who could actually begin from scratch. And because I had an entrepreneurial background, तो उनको लगा कि from scratch के लिए ये बंदा सही है. Because 0 to 1 journey is the most difficult, boring. गिर के सीख ही लेगा. हाँ, गिर के सीख ही लेगा. It's the most boring, lonely sort of journey. And थोड़ा बहुत जयपुर में अच्छा काम किया था. So I was chosen to be sent to Indore. And I landed up here sometime in early August. And this journey started in Indore with 0 startups, empty building, जिसको हमने incubation center में develop करा. So I think उसी समय हमारी मुलाकात भी हुई थी और उसके within a month or so. Yes. We were the first of your incubator startups. Yes, the first few incubated startups that I could catch and make sure that मैं अकेले वहाँ ना बैठूं. मेरे साथ में कुछ लोग उस बिल्डिंग में बैठ जाए. So you were one of them. Yeah. So I'm lucky to have found people like you. Oh, thank you so much. But it is on the vice versa note कि we were lucky that we got you. नहीं, मैं बोर हो रहा था ना, मुझे कोई साथ में बैठने वाला चाहिए था. But एक शब्द आपने यूज किया था incubator. जो मुझे ये realization होता है, I still talk to so many startups. People call me because they find my name somewhere नेट पे मिलता है कि अरे आप RNTU में थे, आपने इधर थे, आप CICO में थे, तो क्या है. एंड वो बोलते हैं हमने तो पूरा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, 2 साल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज योर इंक्यूबेशन सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन. सो इसके बारे में प्लीज टेल द पीपल. So I'll perhaps start with what is an incubator and then come to the other part of thing. Incubator literally is something where you hatch eggs, right? अगर मैं पोल्ट्री का एग्जांपल लूँ, if I take an example of a hospital, if a child is born slightly prematurely, slightly early, usually they are then kept in an incubator, right? Yes. So this provides basically a warm, safe environment for somebody to grow. उसी को if I bring to the startup world or the startup journey, so an incubator is basically a place, ideally a physical place, wherein very early stage startups who don't know the next steps. So perhaps they have an idea, perhaps they already have a product, perhaps they are already in the market but are stuck and they are not able to move forward. Those sort of startups get a path. They are shown multiple ways in which they can move to the next step. So that is what an incubator does. For reasons known, unknown, in India, multiple words are combined together or multiple terms are sold together. So for very early stage, we usually use incubators. For slightly mature ones, we use the word accelerator. In India, even those who don't have a product are accelerated
हाँ, for some reason, and those who have raised Series A sometimes are they are also incubated. But ideally, these words are very well defined when we talk about the Western startup world. But in India, because we are still adopting and adapting to things, so ये words अभी under self definition है. कोई लोग कहीं भी उसको बना लेते हैं. But there's still a lot many myths associated with it. लोगों को पता होने के बाद भी लोग बाग जाना नहीं चाहते हैं. उनको फॉर मी, मेरे लिए तो मीटिंग यू वॉज द बेस्ट पॉसिबल थिंग एवर, विच आई डू नॉट माइंड एडमिटिंग इट, एंड आई टेल टू एवरीवन कि मेरे को लाइक एनी अदर फाउंडर मुझे भी लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कर लूँगा, क्या है, अपन इतना पढ़ते हैं, इतना बैंगलोर का स्टोरीज देखते, गुड़गांव की स्टोरीज देखते, तो अपन भी कर लेंगे. बट दैट इज नॉट द रियलिटी. इवन आफ्टर नोइंग अबाउट इंक्यूबेटर्स अ बिट, मैं एक हेजिटेंट था, which I think most of the people are. So what are those myths and क्यों है आज भी वो hesitance in the founders? I guess the first and most common which I come across is कि मेरा आइडिया इंक्यूबेटर चोरी कर लेगा. Okay. So most people say कि हमें सपोर्ट दो लेकिन हम आइडिया नहीं बताएंगे, या हमें हेल्प चाहिए लेकिन हम आगे बताएंगे नहीं कुछ भी, या फिर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देंगे कि मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, सो आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला फंडा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आज भी यूज़ करते हैं. अर्ली स्टेज यंग एंटरप्रेन्योर्स, मैच्योर थोड़े अलग थॉट से आते हैं. सो वहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि इंक्यूबेटर्स आर इन अ बिजनेस ऑफ सपोर्टिंग बिजनेसेस, नॉट बिल्डिंग देयर ओन बिजनेसेस. सो आई एम नॉट बिल्डिंग माई ओन बिजनेस, आई एम सपोर्टिंग यू एज अ फाउंडर और योर बिजनेस. तो उस डर से बाहर निकलो. और दूसरा एक थॉट ये होता है कि मेरा आइडिया आप कॉपी कर लोगे, आप किसी और को बता के कॉपी करवा दोगे. सो उसके लिए भी थॉट वही है कि आइडियाज आर अ डाइम अ डजन. हर किसी को सेम आइडिया आता है. मैं सेम टू सेम यही बोलना चाह रहा था कि आज सपोज इफ आई एम थिंकिंग अबाउट अ आइडिया, मेरे ख्याल में एट द सेम गिवन मोमेंट 10 और लोग होंगे जो सेम चीज सोच रहे होंगे, और 4 लोग वो कर चुके होंगे. बिल्कुल, exactly. ये तो कोई भी आइडिया नोवेल नहीं है. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड. हम जिस एरा में रह रहे हैं आज की तारीख में, आई डोंट थिंक कि कुछ भी है जो एकदम ही ओके, ये तो ऐसा वो क्या बना दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो ये बहुत मिथ मुझे भी लगता है कि आजकल अभी भी एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स में है. राइट, until unless you perhaps found out a new element which is not in the element table. ज़्यादातर चीज़ें अब नई बची नहीं है from scratch. So usually you are innovating on the business model or the way you produce something or deliver something. Operationally different हो सकता है, but idea में क्या होगा. एक अगर कोई चीज़ें हेल्थ केयर में है, अगर you're delivering medicine, it is a thing which everybody is doing, but the way you are delivering could be different. Yes, exactly. So first तो ये आइडिया वाला थॉट हो गया. दूसरा, people love their idea, love their product and love their thought process. So they're not ready कि कोई और उसकी बुराई कर दे. So the fear of somebody rejecting your line of thoughts is something with which people don't want to share their line of thoughts. Is it fear or it is ego? It is fear masked by ego. Okay. That is what I feel. Because everybody actually hates or fears failure. Okay. But we hide it with our ego कि नहीं मैं बेस्ट हूँ. स्टार्टअप की डेफिनेशन में शुरुआत में भी यही हुआ था, जब तक गिरोगे नहीं सीखोगे कैसे नहीं. सो ऐसा क्यों होता है कि फाउंडर्स गिरना ही नहीं चाहते? उनको लगता है कि वो ट्रेजेक्ट्री ऐसी ही होनी चाहिए, ऊपर एक्सपोनेंशियली राइज हो सकते हैं, आपका कभी एक उबड़ खाबड़ हो ही नहीं सकता. ऐसा क्यों? तो होता क्या है, सो आई हैपन टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ पंडित्स, है ना. तो हम जब वो भागवत सुनाते हैं ना ऊपर बैठकर, तो हम जो बोलते हैं और जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमेशा दिन रात का अंतर होता है. राइट. Similarly, when I perhaps look at your pitch, for example, or any founder's pitch or idea or whatever they have bought, तो मैं वहाँ गलती ढूंढ लेता हूँ कि ये पॉइंट्स ऑफ फेलियर है, इसको सुधार दो. बट व्हेन आई विल बी डिजाइनिंग माई ओन पिच, आई एम 100% श्योर कि मैं भी सेम गलतियाँ करूँगा. बिकॉज वी सफर फ्रॉम वेरियस बायसेस, है ना. वो बायस सबके लिए होंगे, इरिस्पेक्टिव कि मेरा क्या बैकग्राउंड, आपका क्या बैकग्राउंड है. थोड़ा बहुत परहैप्स बिकॉज आई सी टू मेनी थिंग्स, टू मेनी स्टार्टअप्स एक्सेट्रा, मेरा हल्का सा बायस कम होगा, लेकिन किसी और डायरेक्शन में वो होगा ही होगा. सो दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी. आई वुड लव व्हाट आई एम बिल्डिंग. सो इफ आई एम बिल्डिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन टुडे इन माई न्यू जॉब, आई एम लविंग व्हाट आई एम बिल्डिंग. एंड इफ यू कम एज एन आउटसाइडर एंड सी, आप भी कहोगे आदित्य इसमें तो ये बहुत गलत कर रहे हो, इसको ये बेटर कर सकते थे. एंड देन आई विल फील कि वाज आई अ फूल कि मुझे नहीं दिखा. तो वो उस डर को छुपाने के लिए और फेलियर कि आप मुझे ऐसा कुछ बोल गए, मैं वो ईगो से उसको मास्क कर लेता हूँ कि नहीं मतलब मैं अमेजिंग हूँ, मुझसे बेटर और कौन हो सकता है. तो आई थिंक दैट इज द सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट थिंग अमंग फाउंडर्स, वाई दे आर नॉट सीकिंग सपोर्ट. और थर्ड, शायद पता नहीं है, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस ही नहीं है.
अभी भी हम लोग ये बोलते हैं कि आई एम बिल्डिंग इन स्टेल्थ, या ठीक है, मैं अपने घर पे अपनी लैब में या कहीं बैठ गैरेज के में कितने गैराज में हमने छुप तो के बना रहा गैरेज हूँ। में बनाया हाँ, बैठ के, बिल्कुल। हाँ, तो जो माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन हाँ, जहाँ बना था, लोग उसी से अभी इंस्पायर इंस्पायर होके, होकर गैराज में ही बनाते हैं, हाँ, या बेसमेंट में, पर हमारे इंडियन कंटेक्स में गैराज होते नहीं है हाँ, क्लोज जैसे, तो वहाँ बनाते हैं। दैट इज़ वाई दे डोंट इवन नो कि ऐसे कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कि लिटरली एट जीरो कॉस्ट इन मोस्ट केसेस और एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट आपको सपोर्ट करता है। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे भी आते थे, सो यंग स्टूडेंट्स यूज टू कम विद देयर elder brother or sister, with their friends or with their parents, एंड वो पूरा पूछने के बाद में फादर या बड़े भाई बड़े बहन पूछते थे, सर आपको क्या पे करना है, एकदम डर के कि पता नहीं क्या मांग कितना लेंगे और मांगेंगे। हम पे कर पाएंगे नहीं पे कर पाएंगे। तो यूज टू टेल देम कि नहीं सर, आई एम गेटिंग पेड एंड दिस इज माई जॉब टू हेल्प यू आउट और तो गिव ये यू मिथ बेसिक है, हेल्प। ये एक्चुअल में मिथ बिल्कुल है है। कि आज मैं इससे ज्ञान लूंगा तो ज्ञान का मुझे पैसा देना पड़ेगा। ज़्यादा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। हाँ, टीयर 1 में अंडरस्टैंडिंग टीयर 1 में हाँ काफ़ी हो हाँ। चुका है, बट क्योंकि हम टीयर 2 में बैठे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सपने लेके टीयर 3 टीयर 4 से आते हैं, तो उनको तो बहुत दिमाग में डर रहता है, वो एंटर ही नहीं करते, क्योंकि मोस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स आर बिल्ट ब्यूटीफुली। राइट, एग्जैक्टली। तो जैसे आप 5 स्टार होटल में बहुत लोग एंटर करने से डरते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या कर हो जाएगा, उसी तरह इंक्यूबेशन सेंटर में एंटर ही नहीं करते कि इतना सुंदर है, पता नहीं क्या मांग लेंगे। तो दैट इज अनदर पॉइंट व्हिच आई हैव सीन। So generally, मतलब most of the incubators either they are free of cost, which you mentioned, or they charge something, maybe 2,000 rupees a Minimal, month or yes, something. yes. मतलब it is very minimal, just for the cost of the seat. राइट, ज्ञान तो भी फ्री है। हाँ बिल्कुल। कितनी बार ये भी होता है कुछ इक्विटी भी लेते हैं, इज इट सीन? In many incubators, if you are very early stage, because they know that they cannot charge you in cash, सो वो वैसे इक्विटी तो वो इक्विटी लेते हैं, दे चार्ज यू सॉर्ट ऑफ इन काइंड, बिकॉज इक्विटी की उस समय वैल्यू भी एज गुड एज जीरो होती है व्हेन यू आर एट दैट अर्लियर स्टेज। बट आशा यही है कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग 100, शायद 2-3 अच्छे निकल जाए एंड वील गेट आर बाउंटीफुल और आर फंड्स फॉर सस्टेनेंस इन द लॉन्ग रन बट फ्रॉम वन इट ऑफ इज अ दोस फैक्ट, थिंग्स। इंक्यूबेशन सेंटर आल्सो नीड मनी टू रन द शो। आज एक बेसिक चीजें भी होती है, अगर ठीक है एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है वो फंड कर भी रहा है, बट कब तक करेगा? कब तक करेगा? बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं तो एक सेल्फ सस्टेनेशन मोड वाला होना ही चाहिए। सो सारे इंक्यूबेटर जो भी इंडिया में बनते हैं, सारे मैं कहूँगा 90% दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ये कहती है दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 years 5 years यूजली ये रहता है, यू हैव टू बिकम सेल्फ सस्टेनेबल। राइट, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी जगह गवर्नमेंट खुद कहती है कि ग्रांट दो, इक्विटी मत लो, तो इट इज़ अ डायकोटमी, बट ये ऐसा ही है। एंड आई लिटरली हैवंट सीन एक्सेप्ट सम ऑफ द टॉप फ्यू, so the incubators of IIM Ahmedabad, IIM Calcutta, IIT Madras, IIT Bombay, इनके अलावा आई हैवंट, इंदौर, नहीं, इवन वी आर नॉट सस्टेनेबल एज ऑन डेट। ओके, इनके अलावा जो बड़े 5-10 होंगे इंडिया में, इनके अलावा आई हैवंट सीन एनी इंक्यूबेटर्स व्हिच आर सेल्फ सस्टेनेबल अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो IIT Madras like has got several payback from several investments, IIT Bombay इन सब को मिल चुका है, क्योंकि इसलिए शायद ये लोग सस्टेनेबल। बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। आज अगर हम इंदौर पर से बात करें, इंक्यूबेशन सेंटर इंदौर में बड़ा नया टर्मिनोलॉजी है। बिल्कुल, आई गेस 21-22 में आया है। हाँ, उसके पहले कुछ नहीं था। बट अगर अपन बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल इंक्यूबेशन सेंटर एंड अ इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज? क्योंकि आज इंदौर में अगर मैं बात करूँ, जितना मुझे पता है, मेडिकैप्स का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, GSITS का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, IIT इंदौर का इंक्यूबेशन सेंटर है। शायद प्रीडोमिनेंटली यही 3 के पास है, और किसी के छोटे मोटे कुछ होंगे, शायद एक्रोपोलिस के पास भी कुछ एक ई-सेल कमिटी टाइप है। हाँ जी। सो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम CICO? डू दे ओनली एंटरटेन इंजीनियरिंग वाले बच्चे, और दे आर ओपन फॉर पीपल who are having maybe a health tech idea, a healthcare idea? So from my knowledge, I guess everybody accepts every sector as on date. They are not very sector specific. The depth of two things. One, experience of the management with regards to startups respectively. So they might have huge experience in education because that is their background. But as far as startups is concerned, which is again an upcoming industry, it is upcoming field as such across the world, not only in India. And we are in a tier 2 city, so obviously things are still growing here at a very rapid pace, if I may use that word. So the depth of knowledge of the management
of the institution. That is part one. Second, depth of the knowledge of people who are running the incubation center with regards to startups of different hue. So it is possible that a person is running with the experience of a startup himself as a founder or early stage member, but of a certain industry. They might not have a bandwidth to support various other sectors, but obviously they will incubate every other sector. So the quality of support will definitely go down. सो अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड है, टेक बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उनके लिए इंजीनियरिंग वाले Because they have labs, they have etc. their labs and Yes. they have the expertise, तो वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा better ज़्यादा हो मिल पाएगा। जाएगा बिल्कुल. But market side पे they will again suffer because they are again techies by nature, by heart, from the management till the person who top is to running bottom in there. the pyramid of that college, वो लोग They are techies by heart, right? So they'll be good at tech development, product development, हाँ validation, etc. But the market is where they'll suffer, and that is where I think primarily management-led institutions, they are better for the second step, Right. wherein you have something ready, at least a proof of concept, and you want to go out in the market and test your alpha, beta, gamma, So proto. do you mean that maybe CICO or AIC Prestige comes in a phase जहाँ पे आपने एक POC हो चुका है, उसके बाद they'll help you in getting the market fit? For CICO, yes. Okay. It is better that you go After after the product. POC. Oh, after a POC. Yes. Even let's say I'm part of IIT Indore today. So at my organization, which is Drishti CPS Foundation, we prefer somebody with at least a proof of concept, because before that it is a blind journey, Okay. and before that the failure rate is much higher. So if you have an idea, there isn't much skin in the game for you. आपने कुछ invest करा नहीं है, idea और Excel बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, तो आप जल्दी उसको छोड़ दोगे अगर थोड़े दिन कुछ क्लिक नहीं करा. अगर आपने और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करा है, आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना चुके हो, देन आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस कि आप थोड़ा टाइम और टिके रहोगे कि शायद कुछ हो जाएगा. तो फॉर स्लाइटली मोर Anybody would मेच्योर prefer इंक्यूबेशन that. सेंटर्स, प्रेस्टीज, कोई भी वही प्रेफर करेगा क्योंकि उसमें व्हाट शुड आई से मैच्योरिटी ज़्यादा आ चुकी है Yes. रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अटैचमेंट ज़्यादा आ चुका है, तो क्योंकि मैंने बिल्ड किया है तो मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा, वो वाला एक फैक्टर आ जाएगा. मेरा और कुछ टाइम का इन्वेस्टमेंट तो हो ही चुका हाँ. है, इफ नॉट मनी, या तो वो तो जुड़ ही चुका है. इसलिए यस, पीपल स्टिक मोर बिकॉज आर support cost per startup is higher than perhaps a tier 2, tier 3 institute. हाँ इसलिए हमें वो बेटर सूट करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड स्टार्टअप को सपोर्ट करूं. राइट. ईदर इट इज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स और इन्वेस्टमेंट ऑफ माई टाइम एंड माई मेंटर्स टाइम. तो दैट इज़ व्हाट आई वुड प्रेफर कि स्टार्टअप थोड़ा इन्वेस्टेड हो, गुड फाउंडर एट लीस्ट. एक चीज़ डिस्कशन हुआ था, मतलब डिस्कशन, यू मेंशन अ वर्ड अबाउट पिच डेक. बड़ी ट्रिकी चीज़ है क्योंकि फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप पिच डेक बहुत मायने रखता है. फॉर एनीबडी डज. जैसे मैं मेरा एग्जांपल भी लूँ, यू आई डोंट I heard you in one of your Instagram shorts. So I wanted recently. to name you out there because you were the one who actually told me कि भाई क्या है ये तो बकवास है. So ये I think ये सबके साथ होता है. I was not the only one who felt that. I had you, but people actually do not have people around who could actually help them in getting or shaping the structure of a pitch deck, which is like really important. So what are your thoughts about it? How to define a pitch deck? यंग फाउंडर्स में इशू आता है, ऑल्दो यू आर नॉट एज यंग. अर्ली स्टेज फाउंडर्स में इशू आता है कि दे ऑलरेडी गेट द मैसेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कि पिच डेक सही नहीं है. हाँ यू आर गेटिंग इन फॉर्म ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पिचेस, हाँ. है ना. बट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पिच में इतना टाइम कोई देता नहीं है कि बोले कि इशू क्या है. हाँ वो बोलते हैं कि यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड. द ओनली रीजन इज आपकी पिच सही नहीं थी, क्योंकि वो आपकी तरफ पिच ही देख रहे हैं. हाँ इधर डिलीवरी वॉज नॉट गुड और द डिजाइन और द कंटेंट, तीन ही पार्ट होते हैं, राइट. आई वुड डिफाइन पिच डेक एज अ स्टोरी ऑफ योर स्टार्टअप and the entire journey, why you started, whom do you wish to target, and ultimately where do you want to reach, right? So this is the entire story that you have to present in your pitch deck. Why you started and what you're building solves or answers to particular slides of your pitch deck. One is the problem and other is the solution. Why should you build it, or what is great about you is answering another two slides. Why now? Why you, your USP, right? Your unique selling or unique value proposition. And finally, where you want to take it. तो वहाँ पे again आपकी दो slides आ जाती है. What money do you need? yeah And where will you reach with this money, which is your milestones, जिसमें we can perhaps also include our targets etc. for the future, near term and long term future. इस पे जो दो चीज़ें कॉमन लोग करते हैं, एक
ओवर अचीवमेंट दिखाना या एक्सपेक्ट करना कि वी विल गो थ्रू द स्काई इन ऑल आर टारगेट्स. एंड सेकेंड इज बहुत ही अंडर एस्टिमेट करना कि हम तो 2 साल में सिर्फ 20,000 रुपये का बिजनेस करेंगे, पर तीसरे साल में हम 10 करोड़ का कर लेंगे, वो अलग बात है. तो इसमें एक साइड आप अंडर अचीव कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एंड थर्ड ईयर में आप ओवर अचीव कर रहे हो. एंड दिस इज फॉर एवरी फाउंडर. I joined CICO in 2019. 2016 में I pitched to CICO and I was rejected. वो पिच अभी भी पड़ी है मेरे पास में, and when I open it I laugh कि क्या बनाया है ये. Because I agree. I do remember that day. Yes, तो मैंने भी ऐसे पिच किया था कि ईयर 1 के एंड में मर्सिडीज ई क्लास होनी चाहिए और ईयर 3 के एंड में एस क्लास होनी चाहिए. मतलब मेरी पिचिंग बस इसी के आसपास थी. एंड नाउ आई रियलाइज कि शायद वो 20 साल भी करता तो भी वो ई क्लास का सी क्लास भी नहीं आती विद दैट थॉट एंड दैट सेट ऑफ मेट्रिक्स व्हिच आई हैड पुट फॉर माय सेल्फ. सो इसी से व्हाट यू आर सेइंग कि उस थॉट से नहीं आती. सो हाउ मच डू यू एग्री कि पिवटिंग इज नेसेसरी टाइम टू टाइम? मैंने आज तक जितने भी स्टार्टअप सपोर्ट कर रहे हैं करीबन 200-250 इन इफ नॉट मोर 70-75% स्टार्टअप, 3/4 ऑफ द स्टार्टअप्स जिससे वो स्टार्टअप शुरुआत की थी, आज उस चीज़ को वो या तो बना या बेच ही नहीं रहे, या फिर दैट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ देयर एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल रेवेन्यू और एक्चुअल बिजनेस. पिवटिंग होता ही है इन रियल लाइफ, बिकॉज जो आपको डे वन पे आइडियल वर्ल्ड में लगता है कि चीज़ बनेगी बिकेगी, वो नहीं होता यूजुअली. द मार्केट डिमांड्स दैट यू चेंज स्टफ एंड यू बिल्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट द मार्केट नीड्स, एंड इसलिए पिवट करना ज़रूरी हो ही जाता है. बहुत बार टीम या टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन आती है कि टीम वो बना नहीं पा रही जो हमने सोचा था, या टेक्नोलॉजी वहाँ तक आज पहुँची नहीं है जो मैं डिलीवर कर पाऊँ, तो इसलिए भी पिवट करना पड़ता है. इन ईदर केस पिवटिंग हो ही जाती है. अब सिंस हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की बात करें, काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जो हेल्पफुल हो सकती है, विच पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट कि कैसे उसका अवेयरनेस आ सकता है, या क्या स्कीम्स है जिसमें एक्चुअली लोग बाग अप्लाई कर सकते हैं? In most cases, at least as on date, I can confidently say that there is more money in the system than relevant startups to get that money. And इसलिए those people, founders who know, take full advantage and take multiple grants, investment from these government funds. So ये मेरे लिए इशारा था. नहीं, आप जैसे बहुत सारे हैं. So I think सबसे important ये है that you have to be active on social media. LinkedIn and Facebook. Join multiple communities. Instagram also I think now. Join multiple communities of startups जहाँ पे सबको डिस्कशन रोज चलता रहता है. Another point, Startup India की वेबसाइट is really a mine full of information worth exploring. थोड़ी लेआउट ऐसा है कि perhaps it could have been better because information बहुत बार मिलती नहीं है, हमें नहीं मिलती. सर्च करना, बहुत सर्च करना. हाँ, बहुत सर्च करना पड़ता है, अंदर पेजेस में होता है. तो इफ़ somebody is able to do these things at a regular interval, आप चेक लगातार करते रहो. और एक नई वेबसाइट आई है आजकल, PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM. उनकी वेबसाइट पे भी आजकल काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आता है. उसका नाम है मंथन, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. So many challenges are put there, and if you're working in that sector, you can pick up one challenge, give it solution, and take a lot of money or take work order, for example. State governments की बहुत सारी policies आ रही है, whichever state you are working in. Keep checking the state policy and keep reaching out to the relevant department. I guess because this is a lot of work, इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं that there should be at least more than one co-founder to a particular startup, क्योंकि fundraising is actually a full-time role. Yeah. So one person has to concentrate on building the business, and the other person at least 50% time they have to give on fundraising. If you are seriously looking for funds, and serious funds, I'm not talking about small grants of a couple of lakhs rupees here and there, वो जल्दी मिल जाता है. बट आपको एटलीस्ट 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 80 और प्लस समथिंग कुछ चाहिए फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, देन इट इज़ ऑलमोस्ट अ फुल टाइम जॉब. आपको 50-60% टाइम एक जने को डिवोट करना पड़ेगा टू दिस साइड ऑफ थिंग्स एज वेल. सोशल मीडिया, ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन. बहुत बार बहुत सारे रोड शोज भी होते हैं, बट दे आर वेरी स्पेसिफिक. आई एम नॉट श्योर हाउ हेल्पफुल दैट इज, एंड प्लस दैट टेक्स मोर टाइम. तो इफ इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू यू, प्लीज़ गो. अदरवाइज ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत है. एंटायर वर्ल्ड इज, एटलीस्ट द स्टार्टअप वर्ल्ड इज ऑनलाइन वर्चुअल, तो वहीं पर आप पूरी अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं. सो अब यू यूज द टर्म को फाउंडर. सो
कहाँ से मिले अच्छा को फाउंडर, बिकॉज आई बिलीव को फाउंडर इज अ मैरिज विच इज मेड इन हेवन. अगर आपका टिक गया तो यू आर द बेस्ट पॉसिबल कपल, नहीं टिका तो सब कुछ खत्म. बिल्कुल. तो को फाउंडर एज यू मेंशन इज लाइक अ मैरिज. दो ही तरीके से होगी, अरेंज या लव. ठीक है. इफ यू आर परहैप्स बैचमेट्स. इसके अंदर अरेंज मैरिज तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है. नहीं होती है. ओके. होती है. अगेन इंदौर में शायद अभी तक बहुत कम होती होगी. मैं बताता हूँ अरेंज मैरिज कैसे होती है इसमें. मेट्रोज में होती है, फ्रिक्वेंटली होती है. क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी थी मैं अरेंज मैरिज करूं, बट मेरे को समझ में आ गया मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकता, तो मैं लव मैरिज पे अटका हूं. तो पहले उनके लिए बताते हैं जिनको पता ही नहीं है कि लव और अरेंज हम किसकी बात कर रहे हैं. तो लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग टुगेदर, योर बैचमेट्स और योर कलीग्स, एंड दोनों को एक साथ लगे कि बॉस बहुत तंग कर रहा है, या जॉब नहीं करनी आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर मेडिकल एजुकेशन और आफ्टर XYZ, एंड आई वांट टू गेट इनटू अ स्टार्टअप. दैट मीन्स यू फाउंड योरसेल्फ टुगेदर, परहैप्स इंटरेस्ट अलाइन हुए या फिर एक्सपर्टीज अलाइन हुई ना, आप लोगों ने साथ में स्टार्ट करने का कुछ सोचा. That is love marriage for everybody who is listening, and you work together. Second option or second version is, in many places you have this activity known as startup boot camp or startup weekender, in which you go, you are given ideas or you are given challenges which you solve there and then. The teams are built there and then, and many a times अगर 60 लोग हैं और 3-3 के ग्रुप बनाकर 20 लोगों की टीम बना दी गई, 20 टीम्स बना दी गई हैं, तो कई बार टीम्स आपस में स्टिक कर जाती हैं इवन आफ्टर द इवेंट एंड्स. क्योंकि लोगों को लगता है कि यार वी जेल्ड वेल टुगेदर, लेट्स ट्राई एंड कंटिन्यू इट फॉर सम मोर टाइम. सो जैसे डेटिंग करते हैं, सो लेट्स डेट फॉर सम मोर टाइम, एंड इफ दिस वर्क्स आउट देन लेट्स मैरी एंड बिकम को फाउंडर्स. आजकल फाउंडर डेटिंग प्रोग्राम्स काफी एक्टिव हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंदौर में आई हैवंट सीन, सिटीज में इतना ज्यादा नहीं आई हैवंट सीन एज ऑफ नाउ. तो स्टार्टअप वीकेंड जब तक नहीं होगा, विच इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच दिस हैपेंस. तो स्टार्टेड इन US, वेंट टू UK, इसराइल में बहुत कॉमन है ये, बिकॉज दैट इज अगेन अ वेरी स्टार्टअप ओरिएंटेड कंट्री. तो वहाँ पे सब कुछ चल रहा है. इंडिया में इवन बैंगलोर में कुछ हद तक इंडिया में अगेन मेट्रोज में आ चुका है, बट फॉर Tier 2 नॉन मेट्रोज इट इज स्टिल अ न्यू एंड एलियन कंसेप्ट. बट आई थिंक इट विल कैच अप सूनर देन लेटर, बिकॉज स्टैट्स तो यही बोलते हैं कि इंदौर is in the top 10 list of sixth, I think. Sixth. Yes. The most number of startups or emerging startup city of the country. So ये लोग मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप से नहीं गिनते, ये लोग गिनते हैं विद द क्वांटम ऑफ डील, क्वांटम ऑफ फंडिंग रेज्ड. क्वांटम ऑफ फंडिंग रेज्ड. उस केस में क्या है, एक या दो बड़ी फंडिंग आपके पूरे चीज को स्क्यू कर देती है, राइट. सो इफ अ कार देखो हैपेंस इन जयपुर, तो सडनली जयपुर तीसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 बिलियन का टोटल दिख रहा है कि इतना फंड रेज हुआ है, बट इट इज जस्ट 1 or 2 स्टार्टअप्स व्हिच हैपेंस. तो वो नंबर्स कैन बी वेरी डिसीविंग, उसी को कहते हैं शायद. तो इसलिए इंदौर 6th पर, आई एम श्योर और अच्छा होगा, बट स्टिल इट इज वेरी इन द इमर्जिंग, जो ऑफिशियल स्टार्टअप रैंकिंग भी कहते हैं इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट MP इज इन द इमर्जिंग स्टेट्स. इट इज स्टिल नॉट इन द not there yet, but it has to reach there. So एक और चीज़ है, in the startup world एक DPIIT वर्ड बड़ा common है, which people should be aware about. So if you could give more light upon what is DPIIT and why it is important. But I think it is by far the most important thing, at least in India, to start a startup. Right. So Niti Aayog, after the current government came into power in 2014, Niti Aayog was formed, and they realized that something should be done specifically for startups, right? So under the Department for Promotion of something, Investment and Internal Trade, Information Technology, whatever, कुछ investment technology या something, and internal trade, ऐसा कुछ है शायद. I'm sorry, I'm missing that word right now, which is under Ministry of Corporate Affairs. They set up this Startup India thing, right, which is under DPIIT. And they are the ones which certify in India that you are a startup. If you are not certified by them, then none of the government schemes will be applicable to you. And similarly, when startup ranking for states, etc. is given, then your startup will not be counted in the ranking framework. And that is why they become important. Even the tax breaks which are given to startups, not all startups, some of the startups, is given by DPIIT. Under this certificate only. So that is why this becomes very important. And they run the Startup India mission for Government of India, which recently launched the SISFS program, commonly known as Startup India Seed Fund Scheme, which is one of the largest schemes
available as on date. So obviously their importance has only grown in the past, let's say, year or so. So since you were talking about SIFS, so can you please elaborate more कि क्या होता है इसमें? ग्रांट है, इक्विटी है, डेट है, क्या चीज़ होता है और कैसे ये फंक्शन करता है? So SISFS, Startup India Seed Fund Scheme, by Startup India has been given to multiple incubation centers. Good part is that within 45 days of applying, the incubators, every startup can apply at max to 3 incubators. They have to take a decision. So आपको ऐसा नहीं है कि they can keep you forever hanging, क्योंकि बहुत बार incubators से कंप्लेन आती है कि 3 महीना 6 महीना तक वो कोई रिप्लाई नहीं आया. In this case, if you are not replied back in 45 days, you are automatically rejected. So even incubators are quick in responding, ताकि they don't lose a good deal. The bad part or the inconvenient part for some startups is that only startups which are less than 2 years old since their date of incorporation are allowed to apply for it. और जो शायद ये क्योंकि अभी नई स्कीम है उसके पहले जो आए थे सो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए. डीबार हो गया बिल्कुल. एंड ज़्यादा चुभा उन लोगों को, those who established company just before COVID but were unable to do anything due to COVID. तो उनके लिए वो एक lost opportunity हो गई for no fault of theirs, because the 1.5 years of COVID is actually lost years for the entire world. Yes. तो वो उनके साथ में थोड़ी सी I think ज़्यादती है, but government had to put some restrictions to make sure that not everybody automatically applies here and not everybody takes advantage of this scheme. तो इसलिए उन्होंने 2 years रखा, which I think is okay in some respects. Everything is good and bad for somebody. So I think they had to take a decision. They took a decision, and we should take it in our stride. This fund can be given up to 50 lakh from what I remember. Up to 20 lakh you can apply for a grant. You're approved for a grant or not, it depends on the incubator for which you're applying, at which you're applying. Secondly, you can be given money in form of debt. Debt will be at repo rate, which is very low. Again, difficult for incubator to justify its existence and to be profitable or sustainable. And that is why most incubators give you it in form of CCD, CCPS, ultimately which converts into equity. Shares or equity. So इसमें एक चीट जो मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया कि whenever you want to apply for this scheme, आप पहले इंक्यूबेटर्स को गवर्नमेंट की साइट पे जाके अप्लाई करने की बजाय पहले उनसे पर्सनली बात करना चाहिए. उनसे समझना चाहिए कि इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट. इफ दे से दैट हाँ इट इज़ वर्थ इट, देन यू शुड अप्लाई इट. देन योर चांसेस बिकम मोर टू गेट इन टू दिस स्कीम. ये मेरे को एक चीट समझ में आया, बिकॉज आई डिड द सेम एंड आई फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल वे. सो येस, दिस इज इट. This is not a cheat. This is not a cheat. Everybody do it. मतलब this is not a cheat actually. नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बड़े VCs वगैरह की बात करें या इन्वेस्टर्स की बात करें, उनका एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होता है कि हम इस टाइप के स्टार्टअप इन्वेस्ट करेंगे, इस टाइप के फाउंडर्स में इन्वेस्ट करेंगे. कोई ऐसा कहता है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कोई कहता है कि हम लोग सिर्फ सेकंड थर्ड टाइम फाउंडर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कोई अपना सेक्टर बताता है, कोई अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बताता है कि हम यहीं पे करेंगे. ऑब्वियसली जब आप अप्लाई कर रहे हो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, उसमें भी वही सेम सिचुएशन, वहाँ पे सेक्टर्स दिए हुए होते हैं, बट यू नेवर नो कि वो एक्चुअली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. Secondly, everybody is given some funds. They have to use 80% of that fund and then apply for the next tranche. Right. Which sometimes takes time because of various reviews or application or the process as it is. So if you apply and then you find out कि you got rejected because the incubator did not have funds at that point of time, and that is why they did not select you or something like that happened. Or perhaps they had too many startups, let's say in healthcare field, and now they want to invest in agri or vice versa or something like that. It is logical to actually speak to the incubator, and most incubators are open to discuss. क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है. It's a good thing. उनको भी पता चल रहा है, and they also want good people to be associated. Right. So this should be the correct procedure. Those who don't do this are I feel, playing blind. I feel 90% doesn't do this. Yes. उनको लगता है कि बस वेबसाइट पे जाए, हम टिक कर दे, अब वो लोग तो हमसे बात करेंगे, बट इट इज नॉट द रियल सिचुएशन. यस, और उस वजह से ना एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन भी बनता है फॉर द फंड ऑन सोशल मीडिया. पीपल कंप्लेन अ लॉट कि हमें रिजेक्ट कर दिया, ऐसे ही कर दिया, वो कर दिया. रिजेक्शन का हमेशा पीछे कोई ना कोई रीजन होता है. वो रीजन पे जाते नहीं, वो रीजन उनको पता नहीं लगता. और इसी कारण से मेरा कभी अभी डिस्कशन हुआ तो लोगों का कहना है कि हम गवर्नमेंट की स्कीम के साथ एसोसिएट रहेंगे तो हमको कोई इन्वेस्टमेंट देगा नहीं.
एक ये what है? माइंडसेट भी है Okay. कि अगर आपने गवर्नमेंट से पैसा ले लिया है, वो अगर आपके कैप टेबल पे कहीं ना कहीं कोई है, सो कोई इन्वेस्टर्स आपके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे. विच व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? इज इट अ मिथ और इट्स अ रियलिटी? I think it's a myth. Until unless, let's say, for 25 lakhs, you ended up giving 15 or 20% of your company, राइट, ऑब्वियसली. then nobody will invest, irrespective को गवर्नमेंट का पैसा था या प्राइवेट था. But if you are within logical, reasonable levels of losing your equity at decent valuations, then I don't think it affects, because all money, I mean, the color of money is same for everybody. एग्जैक्टली. Incubator better हो तो थोड़ा better support मिलता है. But if you are only desperate for money, it is a question of survival, then I think you should take money wherever it is coming from. या सो अब सिंस हम मनी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्मेट में हो सकता है? काफ़ी बार ये टर्म्स आते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, सीड राउंड, या सीरीज ए, प्री सीरीज है, सीरीज बी, सी, डी, आगे तक चलता था. क्या मतलब होता है ये? हाउ डू यू डिफाइन ऑल दीज टर्म्स? अगेन इंडिया में जो डेफिनेशन हमने बहुत सारी ओवरलैप करी हुई है. हाँ. तो इंडिया में कोई अगर 5 लाख लेता है उसको भी बोलता है कि मैंने सीड इन्वेस्टमेंट ले लिया है, या फिर कोई 2 लाख वाले को भी बोलता है कि हमने सीड ग्रांट दे दिया है. बट ऑल ऑफ दिस इज स्लाइटली बेटर डिफाइंड फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड. अगर मैं इसको बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन करूँ, in my own terms, again I'm not following any conventions as such, I would say anything up to 50 lakhs or a crore Indian rupees is something which should be counted as a pre-seed money. Okay? Anything from 1 to 5 CR or 1 to 8 CR, जिसको $1 million कहते हैं, that should be seed. Anything beyond that is pre-series A. जब तक आप 20, 22, 25 करोड़ तक नहीं पहुंचते, वो सीरीज ए कहलाएगा. इसके बियॉन्ड फिर बट आजकल तो ये भी हो गया ना कि 2-4 करोड़ रुपए को भी सीरीज ए बोल देते हैं, या 1 करोड़ को भी सीरीज ए बोलने लग गए हैं. तो ये इंडिया में टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंडिया में, हाँ, टर्मिनोलॉजी हिल गई है, बिकॉज सबको मीडिया चाहिए, सबको तो वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि सीरीज ए है, सीरीज ए रेस किया, भाई कितना किया, अरे हमने तो सिर्फ 1 करोड़ ही किया. सो वो हो जाता है. सो यूजुअली सीरीज ए ऑनवर्ड्स आपके पास में वीसी आने लग जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आने लग जाते हैं. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली, कि व्हाट इज एन एंजल इन्वेस्टर, व्हाट इज अ वीसी? ये बड़ा लोगों को इसके बारे में, मतलब इवन द स्टार्टअप फाउंडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, कि एक वीसी फर्म क्या होती है. दिस इज अनदर रीजन फॉर रिजेक्शन, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता. राइट. तो यू नीड लेट्स से 50 लाख रुपीस एंड यू अप्रोच अ वीसी, राइट? तो वहाँ वो पक्का रिजेक्ट करेगा, एंड फिर आप बोलते हो कि सारे वीसी मना ही करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, धोखेबाज है, पैसा डालता कोई नहीं, अब वगैरह वगैरह वगैरह. काफ़ी लोग ऐसे ग्राउज लेके आते हैं मेरे पास में कि मैं 25 वीसी के ऑफिस में जाया और कोई पैसा डालता नहीं, सिर्फ बोलते हैं. सब डेक ले लेते हैं, क्योंकि डेक लेना उनका ऑफिशियल काम है. उनका एक एनालिस्ट बैठा होता है सिर्फ डेक लेने के लिए. व्हेन वी टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स, इट इज़ यूजुअली पीपल हु आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs और अल्ट्रा HNIs. ये 3-4 टाइप के होते हैं. यूजुअली दोज हु हैव फैमिली मनी, those who are second, third, fourth generation entrepreneurs. So family offices, जो एक word कई बार आता है, so they come under angel investing, or that's a different term. Okay. Usually. Okay. Angels are usually individuals only. Okay. Right? So let's say the day you get an exit, the day you do an IPO, or the day you do secondary sale of your shares, जिसमें आपको पैसा मिलता है, कंपनी में नहीं जाता. उस दिन आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं. आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, बट व्हाट नेक्स्ट? And you want to multiply or perhaps give back to the startup community. So, अब मैं एंजल तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे. आपके पास में लेट से 2 करोड़ रुपए आया है, तो आपको लगेगा कि यार 25-25 लाख करके मैं 8 स्टार्टअप्स में डाल देता हूँ. तो दैट इज एंजल इन्वेस्टमेंट. बट द क्वांटम ऑफ मनी जो आप पैसा डाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. यूजली करोड़ में नहीं रहता, लैक्स में रहता है, इंडियन रुपीज़ में. VCs अपनी बात की शुरुआत $5 million के आसपास करते हैं. छोटे वीसीज भी होते हैं, जिसको माइक्रो वीसीज कहते हैं, का कल्चर भी, जो 1 million पे भी बात करते हैं. कुछ जैसा आपने बोला कि 1-2 करोड़ की भी बात करते हैं, बट यूजुअली वो भी $1 million यानी 8 करोड़ के नीचे बात नहीं करते. तो इफ़ यू आर नॉट नीडिंग एनीथिंग लेस देन 20 करोड़, तो वीसी के पास में मत जाइए. शायद माइक्रो वीसी के पास में जा सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में सब लोग जाएँ तो यूजुअली एंजल इन्वेस्टर के पास में जाते हैं, या दूसरा एक टर्म है एंजल नेटवर्क, जहाँ पे एक कंपनी होगी जो कि खूब सारे इन्वेस्टर्स आपके पास में लेके आती है. क्योंकि अगर आप भी इन्वेस्टर, आपके पास में डील कहाँ से आएगी, क्योंकि आपका रोज उठना बैठना उस सर्कल में नहीं होता जहाँ स्टार्टअप्स घूम रहे हैं. राइट. तो एक कंपनी होगी, जैसे इनक्यूबेटर जैसे कुछ होगा, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु टॉक टू मेनी स्टार्टअप्स, विजिट स्टार्टअप फेस्ट्स, विजिट ऑल ऑफ दीज
ग्रुप्स विच आर गोइंग ऑन, एंड वहाँ से वो स्टार्टअप स्काउट करते हैं, ढूंढते हैं, एंड इस नेटवर्क के पास लेके आते हैं और फिर नेटवर्क को दिखाते हैं, जिसको पसंद आता है वो स्टार्टअप इन्वेस्ट कर सकता है. ओके, सो अब फैमिली ऑफिसेस क्या है? More structured investment wherein the entire family is involved. ओके, Usually again जहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा होता है. अभी कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स जो कि एग्जिट ले चुके हैं बहुत अच्छा, उन्होंने भी खुद की फैमिली ऑफिसेज ओपन कर दिए हैं. जैसे इंडिया में एक कंसेप्ट होता है, लीगल टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट, टू अ फैमिली ऑफिस. अच्छा, बेसिकली वो जो HUF टाइप का कंसेप्ट था, अब वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आ गए. यस, हाँ. सो वो अपनी एक ही फैमिली के मल्टीपल पार्ट्स हैं, वो सारे मिलके मिलके एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो लेट्स Okay. से सो एक बेसिकली इन हाउस VC बन गया है. इन हाउस VC बन गया, बिकॉज everybody knows that investment में you don't keep all eggs together, right? हाँ. You spread your eggs in Right. multiple baskets. राइट. In that case, you already have invested a lot in stocks. हाँ, You have invested a lot in Properties हो गया, property. गोल्ड हो गया, तो अब क्या कहाँ पे पैसा बचा हुआ है, तो हाँ. चलो स्टार्टअप्स And startup सबसे रिस्की कैपिटल होता है, तो यहाँ पे आप सबसे कम अपना पैसा डालते हो. हाँ, But when you have, let's say, a corpus of 200 crore, तो investing 10 crore is logical कि आप डाल सकते हो स्टार्टअप में. इस केस में फैमिली ऑफिसेज काम आते हैं और यूजुअली वो एक पूरा फैमिली मैनेजर करते हैं. दीज आर मोर स्ट्रक्चर्ड. यूजुअली यहाँ पे एक मैनेजर रहता है जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है फैमिली ऑफिस के लिए, एज कम्पेयर टू एंजल्स जहाँ पे बंदा खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा होता है, कर रही होती हैं. Right. तो यहाँ पे इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. दे आर मोर इन्वॉल्व्ड कि क्या चल रहा है, एग्जिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड ऑब्वियसली देयर सक्सेस रेशियो इज बेटर एज कम्पेयर टू एंजल इन्वेस्टमेंट. सो कई बार आई सीन केसेस जहाँ पे एंजल इन्वेस्टिंग होती है, बट दे आर नॉट ऑफ एनी सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स. दे आर जस्ट कि पैसा दे दिया. बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द मनी विच द स्टार्टअप नीड, बट स्टार्टअप नीड सपोर्ट, गाइडेंस, कनेक्ट्स. वो कहीं बार मिसिंग होता है क्या? वो डिपेंड करता है कि आप किससे पैसा ले रहे हैं. So If to it is, choose an investor is also a big deal. it depends. As I mentioned earlier, if it पैसा is चाहिए about तो, हाँ, if it is about survival, then you don't. Then it is beggars can't be choosers, right? right. Then you take money wherever it is coming from. Sometimes people are happy to take money from non-serious investors so that उनको लगता है कि शांति रहेगी, चिल रहेंगे, पैसा आ जाएगा एंड ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी. But if you are really serious about your startup, about building something, then you should find people who are able to devote time apart from just giving money, because the time of a senior person is a bigger asset than the money that they can give to you. Yeah, The contacts that they can give to you are a bigger asset to you for your growth as compared to just the money. exactly. So अब हमने ये तो बात करी कि इन्वेस्टमेंट से ये होगा, आगे जाएंगे, whatever. What about bootstrap startups? We have good example of bootstrap startups in India who have now become unicorns as well. So वो लोग कैसे कर लेते हैं और क्यों आपको फंडिंग की जरूरत है? सब लोग वैसा क्यों नहीं कर पाते? So I'll take example of Cardiko here because I have spoken to the founder multiple times, and they told us that they took money only when they realized that their nearest competitor, which was I think Zig Wheels at that point of time, was spending too much money on the advertisement and marketing, and they thought that Zig Wheels will out advertise them, because if people only see Zig Wheel, they will only open Zig Wheel website. Yeah. So they wanted to advertise a lot, and that is when they started to think about raising funds. Till that point of time, they were a profitable company. Okay. It is only that they, after they raised money, that they became loss making, and I think till date they are loss making. It has been almost like 7-8 years since they raised the first check. So basically जीरोधा के पास कोई कंपटीशन एज सच नहीं था, इसके लिए उन्होंने रेस करना सोचा नहीं. नहीं, शेर खान था, उससे बड़ा और कौन हो सकता था? शेर खान was a big giant. It Yes, was not yes. From a startup. Yes, plus Sher Khan 20%. targeted primarily those people who had the money to invest into shares and then forget. अब जैसे शेर खान था, इंडिया बुल्स था, दोनों आज की तारीख में अस्तित्व नहीं रखते हैं पर से. शेर खान रखता है, बट जो जीरोधा ने मार्केट बनाया है वैसा मार्केट नहीं बचा है शेर खान का. So Sher Khan went towards the larger corporates who want, I mean, individuals working in corporates etc. who wanted to invest, those who had good money. So Sher Khan का जो एवरेज टिकट साइज है पर डील वो काफ़ी बड़ा होता है,
और Zerodha में तो यंग, हाँ यंग कोविड आया तो उनको और हाँ नए लोग, छोटा कॉर्पस, उसमें रिटेल ज़्यादा इन्वेस्टर जिसको हम लोग रिटेल बोलते हैं, हाँ, इन्वेस्टर्स, हाँ जो सुबह शाम दिन भर चेक हाँ करेगा कि क्या हुआ हाँ मेरे शेयर का, ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करा. हाँ इससे एक और फर्क आपको दिखेगा. So I read it or heard it from Nikhil Kamath in one of his interviews that after the decline of share market in recent past, uh, 1/4 or I guess 1/3 of all Zerodha customers stopped transacting. 1/3, that's 1/3 or 1/4. That's whether a it huge is number. 1/3 or 1/4, Yes. such a huge Yes, number. yes. This did not happen with Sher Khan, right? हाँ, So क्योंकि उसके स्टेबल हाँ, because people knew कॉर्पोरेट कि इन्वेस्टर्स हैं. ultimately all share ये तो markets बढ़ेगा grow. कम, हाँ Yes. तो शॉर्ट टर्म में अगर बहुत गिर गया तो भी कुछ नहीं होता. हाँ लॉन्ग टर्म में हमेशा ट्रेंड ऐसे रहेगा दैट इट विल अल्टीमेटली ग्रो. तो अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो आपको ग्रोथ ही मिलेगी. अंटिल अनलेस कोई कंपनी डेड हो जाए वो अलग बात है, Yeah. बट देन दैट इज व्हाई यू स्प्रेड अक्रॉस ऑल योर मनी. बट फॉर जीरोधा बिकॉज दीज रिटेल इन्वेस्टर वेरी स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनमें अगर एक या दो कंपनी गिर गई जिसका शेयर उस दिन गिर गया, दिस पीपल वुड एक्चुअली स्टार्ट हैविंग अ पैनिक अटैक. या उन लोगों के साथ में ये है कि दैट देयर वॉल्यूम्स आर स्मॉल and the turnover of people moving out of trading would become bigger if the share market start dropping. Yeah, that's true. Aditya, coming towards the end of the discussion, अब होता है कि भैया इन्वेस्टर्स आ गए, अब हो गया 2-3-4 साल हो गया, अब एग्जिट कैसे ली जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एग्जिट प्लान क्या है. आईपीओ आएगा तो बड़ा क्लियर है कि आईपीओ आया तो एग्जिट मिल गया, सब कुछ बहुत क्लियर है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीओ की तरफ जाएं. So, but an investor want to get an exit out of it. So how does it happen? I think stats ये कहते हैं that most startups die down. My personal experience with startups supported by a good organization is that less number of startups die down. Most continue like a MSME. So their growth slows down, but they continue operating like a regular business once they identify कि क्या बनाना है, कितने में बनाना है और कितने में बेचना है, right? In either of those cases, it is very difficult to give returns to an investor. बिकॉज आपकी शेयर मार्क जो है आपके उसकी वैल्यूएशन आपका बढ़ नहीं रहा, आ गया, बहुत स्लो बढ़ रहा है. हाँ. तो आगे कोई खरीदना चाहेगा नहीं क्योंकि यू आर नॉट लिस्टेड. तो ऐसा नहीं कि जिस दिन चाहो आप शेयर बेच के निकल सकते हो. तो स्टेगनेंसी आ गई है या फिर ग्रोथ बहुत स्लो हो गई, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्जिट. एंड दैट इज़ वाई इवन फॉर द बिगर प्लेयर्स व्हाट दे से इज दैट आउट ऑफ एवरी 10 इन्वेस्टमेंट्स ओनली 1 और मैक्सिमम 2 पे बैक, राइट? सो हाउ डू दे पे बैक? जब आईपीओ आएगा तभी पे बैक होगा? नहीं, इन मोस्ट केसेस इट इज़ थ्रू मर्जर और एक्विजिशन. Okay. So you do pretty well, and then let's Some say bigger take, ship would come, bigger fish will would come and वो मेरे eat को you buy up. back Yes. कर देगी. तो वो आपको खरीद लेगी और उसको फिर ये लगेगा कि आई शुड टेक ऑल द स्टेक. तो जितने भी छोटे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने 1%, 2%, 3%, 5% लिया हुआ है, यूजली उनको भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेमेंट इज गिवन दैट यू टेक योर मनी एंड गिव अस द शेयर, बिकॉज दे सी कि इसकी वैल्यूएशन आज यहाँ पर है, बट विद आर सपोर्ट, विद द लार्जर फिशेज सपोर्ट, वैल्यूएशन विल एक्चुअली स्काई रॉकेट. तो इस वजह से दे डू दैट. अदर ऑप्शन इज जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेक सेल. तो इफ योर वैल्यूएशन इज बिकमिंग वेरी हाई then and because you as a founder have diluted a lot of your stock in selling out to the investors in other rounds, you feel कि जिसको शुरू में बेचा था 1, 2, 3, 5%, उनसे मैं वापस ले लेता हूँ ताकि मेरा स्टेक बढ़ जाए. या फिर कोई और इन्वेस्टर उसको लगता है कि यार मुझे उसका भी दिला दे. हो रहा है. हाँ. तो इन दैट केस द मनी इज नॉट गोइंग इनटू द कंपनीज अकाउंट. लेट्स अगर आप अपना खरीद रहे हो तो आपके पैसे जा रहे हैं या फिर आपको मिल रहे हैं अगर मैं आपसे शेयर खरीद रहा हूँ तो उस केस में. तो दिस इज अनदर वे इन विच इन्वेस्टर्स कैन गेट एन एग्जिट. तीसरा ऑप्शन आजकल कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स की कंडीशन लगाने लग गए हैं दैट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर और 5th ईयर और 7th और 9th को एक टर्म देकर वट एवर योर वैल्यूएशन इज, इफ वी आस्क यू हैव टू गिव एन एग्जिट. दिस इज अ वेरी रिस्की स्ट्रेटजी फॉर अ स्टार्टअप. हो सकता है उसके समय पैसे ना हो, लिक्विडिटी ना हो, बट उस समय जरूरत है तो अग्री कर जाता है. हाँ, उस समय क्योंकि उसको लगता है अभी तो पैसे चाहिए, हाँ. ले लो, तब तो दे ही देंगे, तब तो अच्छे दिन होंगे, बट यू नेवर नो व्हाट डेज यू माइट सी इन द फ्यूचर. बट दिस इज हैपनिंग. इसमें इन्वेस्टर को लगता है कि यार मुझे कुछ तो श्योरिटी मिले, कि एटलीस्ट प्रिंसिपल तो वापस मिले, इफ नॉट एन एप्रिसिएशन ऑफ माई मनी. तो इसलिए इन्वेस्टर कोशिश करता है ऐसा कंडीशन डालने की, but I feel it is a bit risky for the startup founders. So since हम founders और investors की बात कर रहे हैं, so ऐसी situation भी आती है कि they both get into a litigation among themselves कि तूने ये commit किया नहीं किया, vice versa or whatever.
सो इसमें ऐसे सिचुएशंस Most है, mature investors डजंट डू दिस. understand real or genuine business failure. हाँ. If there is something fishy, obviously litigation तक बात जाती है. We are seeing too many cases in larger startups these days जहाँ पे कुछ ना कुछ governance या malpractices हुई हैं. I won't name. But for smaller issues, I think अगर कोई malpractice नहीं दिख रही prima facie, तो nobody gets into litigation. People understand कि we have to write it off. As I mentioned, 10 में से एक startup ही आपको payback देता है या 2 देते हैं, तो 8 में you actually write off that investment कि ठीक है, हो गया, रिश्ते नाते बने रहें जी, thank you so much. आगे Both of us are करोगे, wiser do it, yeah, in the right. future. That's हाँ, the you thought. both are becoming mature day on day. Yes, that's it. So, But we have, it has also happened in the past with us that we invested a decent amount in a startup. The founder bought a super bike and went on a foreign holiday. So we went into litigation for that particular startup. Okay. सब कुछ बेचो और हमें अपना पैसा वापस दो. हाँ. That litigation is still going on Okay. after many years. But हाँ, ऐसा सीन हो जाता है. But इसमें कोई एक जना बहुत ही immature होना चाहिए, तभी ऐसा होता है. So according to you, what are the hot sectors, एकदम burning sectors कि हाँ इसमें इस फील्ड में कोई स्टार्टअप करेंगे तो ये तो चलेगा ही चलेगा, क्या है आज की तारीख में? चलेगा नहीं चलेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लिटरली तो ठीक है, इन question इंडिया mark हर है. सेक्टर में आज कुछ भी करो चलेगा ही चलेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव. Yeah. आई थिंक इफ थिंग्स आर प्लान्ड वेल एंड टाइम्ड वेल, आई थिंक दे शुड वर्क. लेकिन पैसा कहाँ मिलेगा? सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सीजन का सौदागर स्टाइल, कि जो सबसे हॉट कीवर्ड्स चल रहे हैं नेट पे जाके सर्च करो. जैसा भी जनरेटिव एआई चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग चल रहा है, डीप टेक के सारे टर्म्स जो हो गए, तो पीपल हु आर, लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा क्या होता है, और मिसयूज भी बहुत होता है. हाँ. तो लोग पौधा उगा रहे हैं, नर्सरी बना रहे हैं, और लेकिन उसमें हम एआई एंड एमएल इंटीग्रेट करेंगे. तो यूजली दिस, क्योंकि वर्ड सुनने में बड़ा कॉमन और अच्छा लगा है, एआई. तो मोस्ट पीपल इवन डोंट अंडरस्टैंड कि या तो एआई लगता है या एमएल लगता है. दोनों यूजली साथ में नहीं लगते, बट लोग यूज़ कर लेते हैं दोनों टर्म साथ में. कभी ब्लॉकचेन भी साथ में डाल देते हैं फॉर एडिशनल तड़का. बट जनरेटिव एआई आई थिंक इज़ द बज़वर्ड ऑफ द डे. उसमें काफ़ी कुछ अच्छा काम हो भी रहा है, काफ़ी कुछ चल भी रहा है. उसकी वजह ये है कि उसके यूज़ केसेस अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं. अभी लोग एक ही इसका यूज़ केस प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, वो है कंटेंट राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग ऑफ मेल्स एंड अदर कंटेंट एक्सेट्रा. बट उसके अलावा जो बाकी यूज़ केसेस हैं, दे आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड, एंड इसलिए आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी विल सी इन नियर फ्यूचर इन जनरेटिव एआई. आई हैव एग्जांपल. व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट जनरेटिव एआई, अभी जिस स्टेज पे है, प्रेजेंटेशन का बनाना या ड्राफ्टिंग ऑफ कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, क्योंकि हम तो उसके लिए यूज कर ही रहे बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक every founder has started using ChatGPT for that matter, yes. to get all this stuff done, and that has become such an handy tool कि हर चीज़ में कुछ भी करना ChatGPT. मतलब इवन गूगल से ज़्यादा आजकल ChatGPT यूज़ होने लग गया है टू आस्क सर्टन क्वेश्चंस, कि भैया यही दे देगा मेरे को डेफिनेटिव आंसर मिलेगा. गूगल पे जाके 50 चीज़ें सर्च करने का क्या मतलब है? बिल्कुल. सो agreed what you are saying. Uska, I'll give you one example of what we are supporting at our incubation center currently. Use case of generative AI or ChatGPT. In medico-legal cases, wherein let's say somebody reached with drug overdose or accident, etc., at midnight, तो डॉक्टर इलाज करेगा पहले, या पहले उसका लीगल एस्पेक्ट देखेगा, या वो कुछ पेशेंट के रिलेटिव को बताएगा. तो रिलेटिव रात को 12 बजे तो लॉयर से कंसल्ट करेगा नहीं. तो where do they actually try and find decent information about it? And even in legal cases अगर कुछ होता भी आगे, तो you might have seen or encountered कि lawyers और जो paralegal staff होता है, ये पुराने judgment पढ़ते हैं and वहाँ से निकालते हैं कि law को कैसे किसी ने read करा है, how have they looked at law from their angle. तो उस केस में we have built a solution through one of our supported projects, wherein specifically for medical legal cases, based only on Indian law, we are able to define and reply in real time about almost any query. And we can even give relevant cases if somebody needs at that point of time. But अभी तो सिर्फ basic answer देते हैं, case backend पे save रखते हैं. Future में I think we'll give access to the cases also. तो अगर कभी कोई paralegal search कर रहा है, तो we'll save a lot of his or her time in doing this initial legal research, as they call it, or the back office work. Okay. So this is one example. So coming to my last question for the day, what are your thoughts about
health tech, healthcare sector, or about the healthcare startups per se? I am very bullish on the entire sector, health tech, healthcare, wellness, if I can use that word also. Because COVID has shown us that literally health is what ultimately counts, Yeah. nothing else. COVID has also shown us that it is not only developing countries like India where the health infra is suffering or is not up to date or optimum, but also among all developed nations. Yeah. That means there is a lot of opportunity to Disparity. innovate. There is a lot of disparity. Definitely. And that is why a lot of problems and Yeah. that is a lot of opportunity to do innovation, build new stuff, try new stuff in healthcare. उसमें कुछ जो अल्टीमेट चीज़ें अभी आ रही हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो डॉक्टर लुक्स एट एन एक्सरे एंड सेज कि यू हैव अ फ्रैक्चर, लुक्स एट MRI एंड टेल्स यू दैट यू हैव अ ट्यूमर और वट एवर, looks at ultrasound and says आपको ये है. But at places where the doctors are not available or the patient load is so high that the doctor is not able to give sufficient amount of time Yeah. to take a decision, in that case a decision support system is able to help a doctor decide or give with certain accuracy कि the system will tell that we think there is a tumor, Yeah. and then the doctor can perhaps spend some more time. So this is machine learning? This is machine learning, yes. Or predict if somebody will suffer a heart attack or not, which is AI. So that is AI. Yes. So healthcare mein what I have understood is that AI and ML can actually work together at certain places. Yes. And blockchain. Blockchain to as well. keep things safe, हाँ, to make sure that there data, is no fraud. data security and data security. privacy वाली बात. Yes. So all these terminologies जिस पे पूरा दुनिया बुलिश है आज की तारीख में, healthcare is one aspect place where बिल्कुल. this works well. बिल्कुल. And in Mediseva, we are trying to get all these things, because we are catering and capturing data, a lot of data every day. So obviously that blockchain would come in for data security. If I add one more term, Yeah. and this is also very useful to what Mediseva does on a day-to-day basis, that is IoT. Exactly. Right? Yeah. So It's Internet all of about Things Internet also, of yes. So Things. everything, because you are taking care of patients remotely, observing them remotely, right? So pervasive internet or Internet of Things is something that you're using on a day-to-day basis for Right. almost every patient Exactly. out there. Yes. Exactly. So thank you so much, Aditya. Thank you so It much. was such a pleasure talking to you. And हमको otherwise भी बैठना चाहिए और discussion करना चाहिए. And there's so much to learn still from you. I've been learning, and every time we meet, there is something new which I learn from you. So I feel like जो लोग आदित्य को मिलना चाहते हैं, please LinkedIn पे, Instagram पे अप्रोच करें, आपको मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली IT दृष्टि में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देते नहीं है ये, बट आप ट्राई करें, शायद मिल जाए तो. So if you're ready to come to Simrol, I'm available at IIT Indore Monday to Friday. But anyways, why I meet or why I come is because I learn perhaps as much or more than what anybody else does. In this case, between us, you do. तो मेरी नॉलेज भी उतनी बढ़ती है ताकि मैं आगे भी कहीं जाके हेल्थ केयर के बारे में बात कर सकूँ from all the knowledge that I gain from you about healthcare. So pleasure is all mine. Thank you for having me here today. Thank you so much.